friends, let us begin with some new topic. First of all, let me ask you some questions. Generally, in business, how many types of assets are there? Can you name them? Yes, correct. Two. There are two types of asset. First is current and second is non-current. Second, assets which yield long-term benefits are called as correct fixed assets. Assets, those which give long-term benefits, are known as fixed assets. Then, those assets which cannot be touched or seen are known as tangible or intangible. Yes, intangible assets. Can you name some of the intangible assets? There are goodwill, patent, trademark, copyright, etc. These assets are intangible assets. These type of assets cannot be seen, but they have a whole value in the market. Goodwill is also an intangible asset which cannot be seen, but it has its value. So, today we are going to study about our topic, that is goodwill. What is the meaning of goodwill? In simple words, goodwill is an intangible asset which shows the reputation of a firm in the market. Goodwill is the value of the reputation of a firm in respect to the profit earning over and above the expected profit. A firm has a goodwill which has the capacity to earn more profit than a common firm, and it is due to its own reputation, specific stable customer and other reasons. Value of goodwill depends on the profit earning capacity of a firm. In short, we can say that goodwill does not exist in those business which earn normal profit or incur loss. Goodwill is shown in the balance sheet on the asset side under the head of non-current assets as an intangible asset. Now, what are the methods to determine or evaluate the value of goodwill? Since goodwill is an intangible asset, there are specific methods to determine value. Value of goodwill depends on a profit earning capacity of a firm or a business. Prospective earning capacity means future maintainable profit. However, while determining the future maintainable profit, past year's profit are considered as the base. Various methods are available for the valuation of goodwill. Generally, following methods are used for the valuation of goodwill, which you can see here as shown in the chart. First is average profit, second weighted average profit, third super profit, and fourth is capitalization of profit. We shall see the practical sum with the help of formulas regarding these four methods for valuation of goodwill. Here is a question regarding all those methods which we have seen earlier, and we shall solve each of them with the help of formulas. Okay. So our question is, Harpal, Rajesh and Jayesh firms information are as under: total assets rupees 10 lakh, liabilities 2 lakh, expected rate of return 10%. Firm's last 5 years profit are as: for the year 2012-13 it is 90,000, for 13 and 14 it is 1,10,000, for the year 14-15 it is 1,20,000, for the year 15-16 it is 1,30,000, and for the year 2016-17 it is 1,40,000. So this is our base question, and we have to see what is written in the last line for each page. First, calculate the goodwill of the firm equal to 5 years average profit. It is quite easy. Let us solve it with the help of formula. The formula is written here. Formula for average profit is total profit divided by number of years. So, we shall write goodwill as per last 5 years average profit method. Okay. So our goodwill year profit in rupees. Year 2012-13 it is 90,000. For 13-14 it is 1,10,000.
For year 14-15, it is 1,20,000. For year 15-16, it is 1,30,000. For year 16-17, it is 1,40,000. Quite easy. Please try to understand. Average profit method. इसमें हमको सबका टोटल करना है, which comes to rupees 5,90,000, and average profit method का फॉर्मूला है total profit divided by number of years. 5,90,000 divided by 5. 5 कहाँ से आया? तो ये हमारे ईयर्स है. ओके, सो आंसर इज, डिवाइड कर देंगे इसको, 1,18,000. गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,18,000. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज गुडविल. ये क्वेश्चन सेम रहेगा. ओके, सो नो नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन. लास्ट लाइन हम रीड करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल. क्वाइट इजी. एवरेज प्रॉफिट पे ही है, बट क्या खाली बोला है? 3 years परचेज. तो गुडविल इज इक्वल टू 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट हमारा प्रीवियस वाला ही लेंगे, 118,000. ओके, एंड ये कहाँ से आया? तो ब्रैकेट में लिख सकते हो 590 डिवाइडेड बाय 5 एज पर प्रीवियस कैलकुलेशंस. ओके, एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू रहेगा 1,18,000. ओके, बट हमें क्या चाहिए? गुडविल. हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ. हमें गुडविल की वैल्यू चाहिए, विच इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. क्वाइट सिंपल. 1,18,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज कितना था? 3. इंटू 3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,54,000, which is the value for goodwill. Next है, again the base question will be same for each point, or we can say for each method. The question is, on the basis of 2 years purchase of weighted average profit, determine the value of goodwill. हमें क्या करना है? weighted average profit और 2 years of purchase, ये दो चीजें ही ध्यान में रखनी है. goodwill as per weighted average profit method, year profit, weight and total weighted profit. Year सो यहाँ पे ध्यान देना है, ये आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है, जब भी मेंशन नहीं किया हो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे तो चलो मेंशन्ड है. अगर नहीं बोला हो, बट आप प्रॉफिट अगर देखें तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सीक्वेंस में बढ़ते हुए ऑर्डर में आ रहा है ईयर वाइज,
तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, वेटेड एवरेज। ओके, और अगर है कि 90,000 फिर 80,000 फिर 1 लाख, इस टाइप का कोई आपको दिखे जो कम ज्यादा लग रहा है प्रॉफिट की वैल्यू, तो सिर्फ उसके लिए क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट यहाँ पे तो क्लियर मेंशन है क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम वेट्स लगा देंगे इसमें। ओके, एंड इफ ईयर पीछे से स्टार्ट हो रहा है, डिसेंडिंग में दिया है, तो भी आपको अरेंज करना है ईयर और प्रॉफिट, उसके सामने वाला ही प्रॉफिट, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, यहाँ पे तो ऑर्डर में ही है, सो नो नीड टू वरी, बस इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे वैल्यूज आ जाएंगी। आपके हाथ में कैलसी होना चाहिए। इसका टोटल आएगा 18,90,000। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दैट इज टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। ये भी सिंपल है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट is equals to total weighted profit upon total weight। यस, इसका टोटल भी करना है, कितना आएगा 15। इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा 1,26,000। बट क्या हमें गुडविल की वैल्यू डिटरमाइन हो गई, मिल गई? नहीं। क्वेश्चन पूरा रीड करना। ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, 2 years ऑफ परचेज, सो गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years ऑफ परचेज, 1,26,000 इंटू 2। तो ये हमें मिली गुडविल की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट वेटेड एवरेज बेसिस। अब ये क्या है, सुपर प्रॉफिट वेटेड एवरेज बेसिस। बेस क्वेश्चन सेम है, इसके फॉर्मूलाज देख लेंगे। यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज फॉर्मूलाज एंड लर्न इट बाय हार्ट। सारे नोट करने हैं और यही सीक्वेंस में, समझो ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के बिना सम नहीं होगा। फर्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो अब एसेट्स और लाइबिलिटीज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो नो नीड टू वरी। सेकेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो भी गिवन है, हमने पहले ही देख लिया 10%। फिर क्या बोल रहा है, थर्ड स्टेप है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। फिर फोर्थ एवरेज प्रॉफिट, उसमें क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही लेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा, अगर सीक्वेंस में जा रहा है प्रॉफिट, देख सकते हो सीक्वेंस में है, तो हम हमेशा वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही काउंट करेंगे। एंड फिफ्थ, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। लास्टली गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो ये फॉर्मूला के बेस पे हम अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट वेटेड एवरेज बेसिस। ओके, फर्स्ट स्टेप, कैपिटल एम्प्लॉयड is equals to total assets minus total liabilities, that is 10 lakh minus 2 lakhs। ओके, कितना आएगा 8 लाख। सेकेंड स्टेप था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ
रिटर्न, वो कितना है 10% जो गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ लिख देंगे 10%। ओके, थर्ड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट is equals to capital employed into rate of return, expected rate of return। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 8 लाख इंटू 10% कितना हो जाएगा 80,000। फोर्थ स्टेप एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही काउंट होगा एज पर आवर प्रीवियस कैलकुलेशंस। कितना था 1,26,000, वो हम यहाँ लिख देंगे, नो नीड टू वर्क इट अगेन। एंड लास्टली सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना 1,26,000 माइनस 80,000, तो हमारा आंसर है 46,000। बट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, गुडविल फाइंड करना है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, 46,000 इनटू कितने हैं 4 ईयर्स। ओके, तो गुडविल की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी हमको 1,84,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस क्वेश्चन तो सेम है, फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। ओके, तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट करना है, इसके सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं हमने, नोट करना है आपको बुक में। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, अभी हमने किया। फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज गिवन, एवरेज प्रॉफिट वेटेड होगा सेम, कैपिटलाइज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, एंड लास्ट गुडविल कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ओके, 10 लाख माइनस 2 लाख कितना आएगा 8 लाख। सेकेंड स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। थर्ड स्टेप एवरेज प्रॉफिट मतलब वेटेड वाला ही काउंट होगा एज पर प्रीवियस मेथड। ओके, दैट इज 1,26,000। फोर्थ स्टेप कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,26,000, रेट ऑफ रिटर्न 10 इंटू 100, तो आएगा 12,60,000। एंड लास्टली गुडविल, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना आएगा 1260 माइनस 8 लाख, फाइनल वैल्यू फॉर द गुडविल इज 4,60,000। ओके, लास्ट पॉइंट
Determine the value of goodwill as per capitalization of super profit method. So super profit method से हमें गुडविल की वैल्यू डिटरमाइन करनी है. अगेन इसके फॉर्मूलाज हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन 10%. Expected profit is capital employed into expected rate of return. Average profit that is given. Super profit is equals to average profit minus expected profit, and goodwill is equals to super profit divided by expected rate of return into 100. Okay, please note down these formulas. Now last, capital employed, total assets minus total liabilities. 10 lakh minus 2 lakhs, 8 lakhs. Okay. Second step, expected rate of return that is 10%. Third step, expected profit that is capital employed into rate of return. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 8 lakhs. रेट ऑफ रिटर्न 10, तो कितना आएगा 80,000. फोर्थ स्टेप, एवरेज प्रॉफिट दैट इज वेटेड एज पर प्रीवियस कैलकुलेशंस. ओके, कितना आएगा 1,26,000. फिफ्थ स्टेप, सुपर प्रॉफिट that is average profit minus expected profit. Average profit है 1,26,000. Expected डिडक्ट कर देंगे उसमें से 80,000, तो मिल जाएगा 46,000. लास्ट, गुडविल फाइंड करना है. गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ return into 100. So 46,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो हमारी फाइनल गुडविल की वैल्यू आएगी 4,60,000. Okay, hope you all are clear with this topic. If you have any doubts, please do comment. Okay, thank you.